लास्ट 1 ईयर्स में कनाडा में काफ़ी सारे अप एंड डाउन हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इमिशन के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, ट्रेड वॉर के रिगार्डिंग, चाहे वो इंडिया से चाइना से यूएस के रिगार्डिंग हो। बहुत सारे अप एंड डाउन हुए। इवन जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का पीएम था, उन्होंने जस्ट लाइक 2 दिन पहले ही अपनी सीट छोड़ दी है। एंड नाउ द मार्क कार्ने विल बी द न्यू पीएम ऑफ कनाडा। सो लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो माइंड में चल रहा है, क्या अभी इमिग्रेशन का क्या हालत होगी, क्या सिचुएशन होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन बहुत इजी हो गया था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। बहुत सारी पॉलिसीज आई है, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स आए हैं, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स को बंद भी किया गया है। बट मैं अगर आपको इन जनरल और ओवरऑल व्यू दूँ तो इमिग्रेशन काफ़ी इजी हो गया था। इट वुड बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू माइग्रेट टू कनाडा, टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल, और डायरेक्ट पीआर के पाथवे भी थे। अब बहुत लोग माइंड में क्वेश्चन तो ये चल रहा है कि न्यू पीएम आया मार्क कार्ने, इवन न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर भी आया रेचल, क्या उनकी पॉलिसीज कैसी होगी, क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो फ्रूटफुल होगा फॉर द न्यू पीपल जो माइग्रेट करना चाहते हैं कनाडा में, जो पीआर लेना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो इनसाइड कनाडा टेम्परेरी वर्कर पे। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो मैं इस वीडियो में मैं हर चीज़ को कवर अप करूँगा एंड यू विल गेट टू नो कि कनाडा में अब क्या होने वाला है एंड व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द दिस करंट पीएम मार्क कार्ने एंड द न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर। उससे पहले आई वुड जस्ट वांट कि आप ये लास्ट स्पीच देखो जैसे जुड़ोगी, एंड यू विल गेट एन आइडिया लाइक व्हाट हिज थॉट एंड व्हाट वुड हैपन इन द कमिंग फ्यूचर, एंड वो क्या सीट होल्ड करेंगे आने वाले टाइम पे। Hi everyone. I've come here to talk to you about your prime minister, your leader, but to me, it's just dad. Je crois qu'on sait tous que I think we all know that being a prime minister is not the easiest job in the world. Long days of work, stress, But I media can tell you, attention. it's not that easy to be the kid of a prime minister either. I've been trying hard to live the life of a normal teenager, but I think you can imagine it's not that simple of a task. La sécurité, les règles, le Security, drama rules, m'ont drama empêché de me have sentir all vraiment stopped libre me ces dernières feeling free over the années. past Le few nombre de fois où years. les gens m'ont donné des The nouvelles de number lui, comme si c'était of pas de mon père times qui parlait. who spoke to me about him J'ai as dû if he choisir wasn't mes my amis avec father. soin et parfois douter l'intégrité de certaines personnes. So that led me to doubt the integrity of some people. I've had some great conversations with my dad about the difficult situations I've lived through, and he never failed to make me feel better. He listened, and more than that, I knew he heard me, he understood me, because he lived through all that. My brothers and I have shared our dad with you for the past 12 years. Now, we're taking him back. But before we do, I guess you can have him one last time. Please welcome your Prime Minister, my dad, Justin Trudeau. Okay, that was Ella Grace Trudeau, a very put together 16-year-old. I would not have been able to give that kind of speech at that age. And here's Justin Trudeau on what is undoubtedly an emotional moment for him. We will listen in and talk about it. Mes amis, bonsoir tout le monde. Hello, my friends. You know, as I look out across this room, I have just one question. How's the Liberal Party doing tonight? Ella Grace. Ella Grace, I know that these last few years haven't been easy for Sav. Hey, Adrian, yourself. Thank you for having been so patient with me, even when I was stressed, when I was traveling too much, when I couldn't think about anything other than work. But please know that in the most difficult times, you inspired me. You gave me courage. Now, I can imagine that you're all expecting me to stand up and talk about all that we've accomplished together. And don't get me wrong, I am damn proud of what we've done over these past 10 years for the middle class and people working hard to join it.
But tonight is about our future as a party, as a country. Now, I know that we as Liberals, as a government, often get criticized by our friends for not taking a victory lap after we get something big done. We do something really big, and then we move on right away to the next challenge. Because as progressives, as Liberals, we know there is always more to do. So it is important to take the time to reflect on and share the big successes. देखो, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, कनाडा में पॉलिसीज तो बहुत चेंज हो रही है और अप एंड डाउन होती रहती है। हर महीने कुछ ना कुछ पॉलिसीज आती रहती है, हर महीने कुछ ना कुछ पॉलिसीज बंद होती है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाइक ओपन होती है इन टर्म्स ऑफ इमिशन के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा, वर्क परमिट हो, LMI के रिगार्डिंग, डायरेक्ट पीआर पाथवे के रिगार्डिंग हो, इवन न्यू कैटेगरी है, एजुकेशन क्विज कैटेगरी आई है। देखो, एक तो रियलिटी है कि कनाडा का जो इमिग्रेशन है ना, उसका कोई सिर पैर नहीं है। अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर से भी, उसको भी समझ आ जाएगा कि कनाडा में कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो मेक श्योर अगर आप कनाडा में पीआर लेना चाहते हो तो आप ऐसी पाथवे को चूज करो जो एवरग्रीन हो, चाहे वो फ्रेंच बेस्ड हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो स्किल बेस्ड से बिलोंग करते हो। इन्हीं में तो पॉसिबिलिटी है ही है कि आपको इसमें पीआर मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, MBBS आपने किया हुआ है, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर हो, इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके सिर्फ 410 420 स्कोर आ रहा है और जिनके वो सिर्फ फ्रेंच आती है, जिनकी सिंपल सी एवरेज प्रोफाइल भी है, उनको आराम से यूं चुटकी में पीआर मिल रहा है। बट एज कम्पेयर टू दो जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, MBA की हुई है, मास्टर्स की हुई है, PhD की हुई है, उनको नहीं मिल रहा पीआर। इवन अगर आप मास्टर स्टडीज में, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। कनाडा में पहले अगर आप मास्टर स्टडीज में आते थे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। अगर आप ओंटारियो में जाओ, ONB में फाइल लगाओ, आपको डायरेक्ट पीआर मिलता था इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस। सेम गोज टू ब्रिटिश कोलंबिया ऑल्सो। अगर आप अटलांटिक प्रोविंस के अंदर भी जाते थे, कोई भी 2 ईयर कोर्स करते थे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 1+1 या मास्टर कोर्स भी करते थे, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस यू कैन गेट अ डायरेक्ट पीआर अंडर द AIP स्ट्रीम, अंडर द PNP स्ट्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। So right now it would not be easy for everyone to get into the PR pathway. अब जो मार्क करने आया है उसकी जो, मैं आपको उसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। वो बंदा कैसा है, he is just like a Justin Trudeau 2.0, nothing else. देखो, अगर I will tell you very frankly, 2025 में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है एंड एवरीबडी नोज कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं। और कनाडा में जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेसिज्म, हर तरह की बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत दिक्कत है। हर जगह नेगेटिव एक्सपेक्ट है और बहुत लोगों के माइंड में एक चीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज इन कनाडा एंड स्पेशली वो लाइक वो ब्लेम करते हैं इंडियंस को एंड दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। कि सबसे, मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारी मिनी सिटीज़ ऐसी है कनाडा में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, और जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कनाडा में इंडस्ट्री, वेयरहाउस, फैक्ट्री बहुत कम है। आप खुद सोच के देखो, अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में जहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस के अंदर एंड यूएस उससे प्रोसेस करके, उससे आगे प्रोसेस करने के बाद वापस कनाडा को उसको बेच दिया जाता है। सो व्हाट यू थिंक, मतलब क्या सोचते हो कि क्या कनाडा ही को। मैं वो इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो बहुत लोगों के माइंड में बहुत लोगों का अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट एक रियलिटी ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स की इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही, वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रही, और वो हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा रही है, चाहे वो फेडरल टैक्स हो, चाहे वो कार्बन टैक्स हो। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि मार्क करने आने के बाद कि कनाडा यूएस का रिलेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी या इम्प्रूव हो जाएगा, बट इन माई ओपिनियन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बिकॉज यूएस की जो गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट है, जो उनका माइंड सेट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ कनाडा के रिगार्डिंग,
वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। बट ये चीज़ है, अगर मैं कोई इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कहूँ, इफ़ यू वांट टू लाइक मूव टू कनाडा एंड इफ यू थिंक कि देयर वुड बी अ पॉजिटिव न्यूज़ इन द कमिंग फ्यूचर, माइट बी देयर अ पॉजिटिव न्यूज़। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर 2025 में अक्टूबर के महीने में कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है, देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर और टू गेट इनटू द कनाडा ऑल्सो। बट अगर यही गवर्नमेंट रहती है, दैट मीन्स अगर लिबरल गवर्नमेंट रहती है, then there would be a higher chances to get into the Canada, and possibility of getting into the PR for the inside people would be very very easy, and जो outside से भी आना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक easy हो जाएगा because इस गवर्नमेंट की जो policies है ना वो काफ़ी open है as compared to conservative. The next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85.9% of the vote. There's someone who's trying to do the opposite. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah. Donald Trump. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कनाडा गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इकोनॉमी के रिगार्डिंग बिटवीन द कनाडा एंड यूएस, कनाडा एंड इंडिया, कनाडा एंड चाइना। तो बहुत सारी पॉलिसी चेंज होगी, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के टाइम पे। और ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती है कि उनके अभी माइंड में क्या चल रहा है और वो किस किस चीज़ों को फोकस करेंगे। बट एक क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में जो मेरे को कई लोगों ने पूछा था, जो एजुकेशन कैटेगरी है क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगी, शॉर्ट टर्म रहेगी? देखो कोई भी जो कैटेगरी न्यू लॉन्च होती है ना, एटलीस्ट 5 years तो रहती है। और कैनेडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, जो हेल्थ केयर है, केयर गिवर है, नैनी वाला है, चाइल्ड केयर गिवर है या एजुकेशन कैटेगरी, इसको परमानेंट किया जाए। अब इसको 5 साल रखे, 10 साल रखे, बट अगर आप इस कैटेगरी से मैच करती हो, आपकी प्रोफाइल इस कैटेगरी से मैच करती है, देन इट वुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस पर एक्सपीरियंस गेन करो, क्वालिफिकेशन गेन करो, then move to Canada, and chance of getting into the PR pathway would be very very easy, क्योंकि इसमें ज़्यादा CS स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आने वाले टाइम पे समझ आ जाएगा कि इमिग्रेशन का जो रास्ता है वो किस जगह मोड़ लेता है। बट यस, अगर कंजर्वेटिव पार्टी आती है इट वुड बी वेरी हार्ड, अगर ये सेम गवर्नमेंट रहती है, लिबरल गवर्नमेंट रहती है, देन द पॉलिसीज विल बिकम मोर ईजियर एंड यू विल गेट अ PR वेरी ईजी वे, बहुत आराम से आपको मिल सकता है अगर ये सेम गवर्नमेंट रहती है। बट चांसेस ऑफ द सेम गवर्नमेंट रिमेन इन द पावर वुड बी वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज जिस हिसाब से कनाडा की सिचुएशन है और जो कंडीशन है, एंड नो वन इज हैप्पी एक्सेप्ट लेफ्ट विंग। सो वीडियो ये पेंड करता हूँ, एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, I would definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय।